Hello everyone, this is Disha welcoming you to this digital platform of learning. Today I am going to take English of class 10 and the topic is Glimpses of India, section 3, Tea from Assam. Today I am going to teach you part 5 of this lesson, Glimpses of India. So I welcome you once again on this digital platform of learning. See this beautiful picture, tea from Assam. This is the lesson which you are going to study today. So Assam is known for its beautiful tea garden, and this lesson relates to the tea gardens of Assam. This story is about two friends, Rajbir and Pranjal, and Rajbir visits Pranjal's house, whose house is in Assam. So we will see in this lesson how they discuss about this tea from Assam, about the Assam tea gardens. Let's see. First of all, I will move towards the writer. The writer of this lesson, Tea from Assam, is Arup Kumar Datta, and Arup Kumar Datta, the name itself reflects that Arup Kumar Datta is an Indian writer. Arup Kumar Datta is an Indian writer and journalist from Guwahati, Assam. Arup Kumar Datta is a famous writer and journalist from Guwahati. He is from Guwahati, Assam. This is the picture of Arup Kumar Datta. You can see the bright picture. He has written 16 books for adults and 17 adventure novels for young people. So Arup Kumar Datta is a famous writer who has written 16 books for adults and 17 adventurous novels for young people, for the younger generations. तो अरूप कुमार दत्ता एक भारतीय लेखक है और एक जर्नलिस्ट भी है. अभी वो जर्नलिस्ट का भी काम करते हैं लेखन के साथ साथ, और वो असम से ही बिलोंग करते हैं. वे एडल्ट्स के लिए 16 किताबें लिखे हैं, एडल्ट्स लोगों के लिए, और 17 एडवेंचरस किताबें लिखे हैं यंग पीपल के लिए, फॉर द यंगर जनरेशन. क्लियर? we'll know more about him in the next slide. In 2014 he was awarded the Lifetime Achievement Honor by Association of Writers and Illustrators for Children, New Delhi, the Indian chapter of the International Board of Books for Young People. तो अरूप कुमार दत्ता 1914 में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था. इतने बड़े लेखक ये हैं, और इनका लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. और उसी योगदान के कारण 2014 में उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स फॉर चिल्ड्रन, एक संस्था है, इस संस्था ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से नवाजा. और इनके साथ साथ इन्हें ढेर सारे प्राइजेस से भी नवाजा गया, ढेर सारे पुरस्कार दिए गए भारत सरकार द्वारा. इन्होंने चिल्ड्रन के लिए ढेर सारे किताबें, नॉवेल्स लिखे थे. तो न्यू दिल्ली में इनको नवाजा गया द इंडियन चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बुक्स फॉर यंग पीपल.
He has also won numerous awards including the Shankars Award in 1979 conferred to mark the International Year of the Child. ध्यान देंगे, इसके साथ साथ इनको ढेर सारे अवार्ड से नवाजा गया, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, और इसके साथ साथ उतने सारे अवार्ड से नवाजा गया। उसके साथ साथ फिर शंकर्स अवार्ड भी इनको मिला 1979 में, 1979 में शंकर्स अवार्ड से भी नवाजा गया। और क्यों दिया गया? कन्फर्ड टू मार्क द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड, और इसलिए दिया गया कि उसकी इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड का मेमोरी में यह दिया गया। ही हैज बीन अवार्डेड द सिविलियन अवार्ड पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018, और उसके बाद इनको बहुत ही हाई अवार्ड से नवाजा गया, सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार ने इन्हें सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया, जिसका नाम है पद्मश्री 2018 में। तो ढेर सारे पुरस्कार इनको मिले हैं इनके लाइफ टाइम में। अभी भी ये जीवित हैं, अभी भी ये लेखन का कार्य करते हैं, किताबें लिखते हैं और जर्नलिस्ट का भी काम करते हैं, पत्रकारिता विभाग में भी ये काम करते हैं। ढेर सारे आर्टिकल इनके न्यूज़पेपर में छपते हैं। और आगे बढ़ते हैं अब स्टोरी के बारे में। लेट्स गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टोरी। आई वांट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का संक्षेप बताएंगे। द लेसन इज अबाउट टू फ्रेंड्स, Pranjal and Rajbir, who are traveling to Pranjal's hometown, Assam, for the summer vacation. ये जो कहानी है, this story depicts about two friends, Rajbir and Pranjal, who are traveling to Assam to spend their summer vacation. गर्मी की छुट्टियां है और गर्मी की छुट्टियां को बिताने के लिए ये दोनों दोस्त जो एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, ये लोग आसाम जा रहे हैं। और प्रांजल और राजवीर दोनों दोस्त हैं, और प्रांजल का घर आसाम में है सॉरी, और राजवीर प्रांजल के घर पर जा रहा है, उसके होम टाउन में छुट्टियां बिताने के लिए, गर्मी का ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियां बिताने के लिए वो जा रहा है। और वो सुंदर सा चाय बागान, चाय बगीचों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है राजवीर, क्योंकि पहले कभी वो कोई टी गार्डन में नहीं गया था। ये देखिए कितना सुंदर तस्वीर है। वहां की वुमेन जो है चाय के पत्ता चुन रही है, तोड़ रही है, प्लग कर रही है, और इसके बाद ये प्रोसेसिंग में जाता है, और उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद चाय हम लोगों को मिलने लगता है। तो चाय के पत्ते चाय बागान में ये प्लग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। असम इज नोन एज द टी कंट्री। असम को चाय का देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चाय असम में होता है। देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूज टी गार्डन्स इन असम। इट हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। और चाय के बगीचा के मामले में सबसे ज्यादा चाय के बागान है, चाय के बगीचे हैं, सबसे ज्यादा चाय के पौधे लगाए गए हैं। असम में विश्व में सबसे ज्यादा चाय के प्लांटेशंस होता है असम में, विश्व फेमस है। ड्यूरिंग देयर जर्नी दे डिस्कस अबाउट द वेरियस लेजेंड्स दैट आर नोन टू हैव डिस्कवर्ड टी। और ये लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, प्रांजल
और राजवीर दोनों दोस्त, और सफर के दौरान ये लोग अनेक दंत कथाएं, अनेक दंत कथाओं पर विचार करते हैं। लेजेंड्स का मतलब होता है दंत कथाएं, कि किस प्रकार चाय का आविष्कार हुआ है, हाउ टी वाज डिस्कवर्ड। दे डिस्कस ऑन दिस मैटर, दे डिस्कस ऑन डिफरेंट legends, various stories which prove that how tea was discovered. The story tells us about the popularity of tea as a beverage. और ये कहानी क्या बताता है, किस प्रकार चाय फेमस हुआ एक पेय पदार्थ के रूप में। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, मतलब पीने वाला पदार्थ। पीने वाले पदार्थ के रूप में चाय कैसे मशहूर हो गया, इसके बारे में ये कहानी हम लोगों को बताता है। ये तो बहुत ही सुंदर कहानी है। यू ऑल विल रियली लव इट एंड लाइक इट। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सक्यूज मी। टी फ्रॉम असम। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल जो है एक यंग लड़का है जो कि असम का रहने वाला है। ये कहानी के बारे में दर्शा रहे हैं जैसा कि आपके किताब में दिया गया है। तो प्रांजल एक जवान लड़का है जो कि असम का रहने वाला है, और वो राजवीर का क्लास साथी भी है, और एक स्कूल में दोनों एक साथ दिल्ली में पढ़ते हैं। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो यहां पर देखें, प्रांजल के पिता वो टी गार्डन में एक चाय के बगीचे में मैनेजर का काम करते हैं। अपर असम, ऊपरी असम में, अपर असम, लोअर असम, हाँ, अलग अलग एरिया है जहां टी गार्डन लगे हुए हैं। ठीक है, ढेर सारे टी गार्डन है, टी स्टेट्स हैं। तो अपर असम में वो मैनेजर है टी गार्डन में, उनके प्रांजल के पिता। और प्रांजल ने राजवीर को आमंत्रित किया है अपने घर में। अब उसने आमंत्रित किया है कि राजवीर उसके घर आए उसके साथ समर वैकेशन में, गर्मियों की छुट्टी में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चाय गरम चाय। A vendor called out in a high pitched voice. तो क्या हुआ, ये लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, और जब चाय वाले जो चाय बेचते हैं, वो लोग प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन में, ट्रेन का बगल से गुजरते हैं। चाय गरम चाय, ऐसे आवाज में, हाई पिच्ड आवाज, ऊंचे आवाज में वो शोर करते हैं, जिससे कि लोग जो पैसेंजर्स हों, जो यात्री हैं, उनके चाय खरीदे। इसी प्रकार चाय गरम चाय बोलते हुए एक चाय वाला उधर से पास करता है। He came up to their window and asked, और वो चाय वाला उनके खिड़की के सामने आता है, जहां प्रांजल और राजवीर बैठे रहते हैं। खिड़की के पास जो जगह है वहां पर बैठे रहते हैं, और वहीं पर चाय वाला आता है और उनको पूछता है, क्या पूछता है? चाय साहब क्या चाय पिएंगे? आपको चाय दूं? इसका मतलब ये हुआ। Give us 2 cups, प्रांजल सेड। और जैसे चाय वाला पूछता है कि क्या साहब आप लोग के लिए भी चाय दूं, तब प्रांजल बोलता है कि 2 कप चाय दो हम लोगों को। Give us 2 cups of tea. They sipped the steaming hot liquid. They drank the steaming hot liquid. Steaming hot liquid मतलब
चाय के लिए आता है, स्टीमिंग हॉट लिक्विड, भाप निकलता हुआ इस तरल पदार्थ को वो लोग पिए। सिप्ड का मतलब ड्रैंक। ऑलमोस्ट everyone in their compartment was drinking tea too, और उस कंपार्टमेंट में, उस बोगी में, उस डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में और भी लोग सवार थे, बैठे हुए थे, और करीब सारे लोग चाय पी रहे थे। उस समय वो लोग भी चाय पी रहे थे, चाय पीने का आनंद उठा रहे थे। जिस प्रकार ये दोनों बच्चे प्रांजल और राजवीर चाय पीने के आनंद उठा रहे थे, इसी प्रकार दूसरे यात्री, बाकी जो यात्री जो बैठे हुए थे ट्रेन कंपार्टमेंट में, वो लोग भी चाय पी रहे थे। I'll move on to the next slide. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर चाय बागान तो नहीं गया था, चाय बगीचा कभी विजिट नहीं किया था, लेकिन चाय के बारे में भली भांति उसे ज्ञान था। चाय के बारे में उसे भली भांति मालूम था कि कितने लोग विश्व में चाय पीते हैं, उसे राजवीर को पता था। तो राजवीर प्रांजल से पूछ बैठता है, क्या प्रांजल तुम जानते हो कि करीब 80 करोड़ कप्स, 80 करोड़ कप लोग चाय पी जाते हैं। लोग 80 करोड़ कप चाय रोज पीते हैं। पूरे विश्व में कितने कप चाय पीते हैं लोग? 80 करोड़ कप चाय पी जाते हैं पूरे विश्व में लोग। राजवीर बोला। तब उसका जवाब कैसा दे रहा है प्रांजल? यू एक्सक्लेम प्रांजल, और तभी प्रांजल बोलता है व्यू, वाओ। चौंकते हुए प्रांजल जवाब देता है, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। और सचमुच का प्रांजल कहता है कि सचमुच ये बिल्कुल सच है कि चाय ये पूरे विश्व में बहुत ही मशहूर है, बहुत ही फेमस है। चाय ढेर सारे लोग पीते हैं। चाय के बिना कितने लोग हैं जो कि चाय के बिना नहीं रह सकते हैं, चाय पिए बिना। तो चाय एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो लोगों का थकान भी दूर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The train pulled out of the station. ट्रेन जिस स्टेशन पर रुका हुआ था, ये लोग बैठे हुए थे ट्रेन में और स्टेशन पर रुका हुआ था, धीरे धीरे ट्रेन चलना शुरू हो गया। वहां से ट्रेन का इंजन सारे बोगी को खींचना शुरू कर दिया और ट्रेन धीरे धीरे आगे निकला, प्लेटफॉर्म को छोड़ने लगा। प्रांजल buried his nose in his detective book अगेन। और प्रांजल एक डिटेक्टिव किताब, एक जासूसी किताब पढ़ रहा था। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी। प्रांजल एक जासूसी किताब पढ़ रहा था। फिर से वो जासूसी किताब पढ़ने में वो व्यस्त हो गया। हाँ, अपने आप को व्यस्त कर लिया उस डिटेक्टिव किताब में। वो डिटेक्टिव किताब में डूब गया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery। और राजवीर भी बहुत बड़ा फैन था डिटेक्टिव कहानी पढ़ने का, माने बहुत बड़ा शौक था उसका भी डिटेक्टिव किताबों को पढ़ने का। उसे भी बहुत बड़ा, उसको भी बहुत शौक होता था और शौकीन था डिटेक्टिव किताबों को पढ़ने का। बहुत बड़ा शौकीन व्यक्ति था, शौकीन लड़का था। लेकिन उस वक्त उसे डिटेक्टिव किताबें पढ़ने को मन नहीं कर रहा था। ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। वो अपना ध्यान
सुंदर दृश्य को देखने में, सुंदर नजारे को देखने में लगाने को सोचा। ट्रेन जब पास करता है तो सुंदर खिड़की से सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर नजारे दिखाई देते हैं। वही सुंदर सुंदर नजारों को देखने में यह व्यस्त हो गया। कौन? राजवीर। क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। You see the beautiful tea garden in this picture, you can see, and how a lady is plucking the leaf of the tea. It was green everywhere. और सुंदर नजारा जो देख रहा था राजवीर, हर जगह पूरा हरियाली हरियाली दिखाई दे रहे थे, पूरा ग्रीन हरे भरे खेत, हरे भरे पेड़ पौधे सारे दिखाई दे रहे थे। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर इतना हरा भरा पेड़ पौधा, लहलहाते हुए खेत कभी पहले नहीं देखा था। वह इस सीन को देखकर, इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. और सबसे पहले तो आसाम में घुसने से पहले पैडी फील्ड्स दिखाई दिए, धान के खेत दिखाई दिए, लहलहाते हुए हरे भरे धान के खेतों को देखा। कौन? राजवीर। उसके बाद पैडी फील्ड्स पार हुए तो टी बुशेस, चाय के झाड़ियां भी दिखाई देना शुरू हो गए, चाय के पौधे भी दिखाई देना शुरू हो गए राजवीर को। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। यह बहुत ही सुंदर दृश्य था। राजवीर ने देखा, अपने सामने खिड़की से देखा, ट्रेन के कंपार्टमेंट से, कि बहुत ही सुंदर दृश्य था, मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। और डेंसली वुडेड हिल्स मतलब बहुत ही डेंसली पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, जंगल दिखाई दे रहे थे, जिसमें पेड़ पौधों से भरा हुआ था, पूरा घना वृक्ष, घना जंगल दिखाई दे रहा था। और पहाड़ी भी दिखाई देते, पहाड़ी क्षेत्र भी से वो लोग गुजर रहे थे। और चाय के बगीचे को देख रहा था राजवीर, और इतना सुंदर दृश्य था कि वो देखते गया उस नजारे को, जितना दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी वह देखता रहा, सुंदर सुंदर चाय के बगीचे को, दृश्य को। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. और टाइनी टी प्लांट्स को देखा, वहां से गुजरते हुए देखा, लंबे तगड़े शेडी ट्रीज भी दिखाई दे रहे थे, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे थे, शेडी ट्री जो कि छाया प्रदान करता है। और ऑर्डरली रोज ऑफ, और एक ऑर्डर में बुशेस लगाए हुए थे, झाड़ियां लगाए हुए थे, जो कि बिजली, वो जो झाड़ियां जो है वो हल्का पल्का हिल रहे थे, डॉल लाइक फिगर, जैसे डॉल जैसे हिलता है, गुड़िया अगर कहीं टांग दिया जाए, रस्सी से बांध दिया जाए तो किस प्रकार हिलता है, उसी प्रकार से ये लंबे कतार में जो झाड़ियां थे ये हल्के फुल्के हिल रहे थे। बहुत ही सुंदर नजारा था, बहुत ही सुंदर दृश्य था, ये बहुत ही मनमोहक दृश्य था, जो कि इसकी आंखें कभी भूल नहीं सकते राजवीर इस दृश्य को, सुंदर दृश्य को देखकर बहुत ही खुश हुआ,
उसका मन पूरी तरह से खिल गया। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। सी द ब्यूटीफुल टी गार्डन। यू कैन सी द women are plucking the beautiful leaves of the tea। सुंदर सुंदर लीव्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए पत्ते दिखाई दे रहे हैं चाय बागान के, एकदम कितने सुंदर। कोई भी अगर उस चाय बगीचे में जाएगा उसका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इतने सुंदर चाय बगीचे का पिक्चर है, देखिए। Now I will move on to the last slide of today's part. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. और दूर में राजवीर ने देखा कि एक अगली बिल्डिंग, एक कुरूप इमारत दिखाई दे रहा था और उस इमारत से, उस बिल्डिंग से स्मोक निकल रहे थे, धुएं, स्मोक बिलोइंग मतलब निकल रहे थे, स्मोक in the distance he saw that smoke was coming out from the tall chimney। लंबा चिमनी लगा हुआ था और वहां से उस बड़े से इमारत से धुएं निकल रहे थे, उस इमारत के चिमनी से, उस बिल्डिंग के चिमनी से। तभी राजवीर बोल उठता है, क्या कहता है देखिए, हे अ टी गार्डन। और उसी वक्त राजवीर बोलता है, हे एक चाय का बागान, कितना सुंदर चाय का बागान। ही बिकम्स वेरी सरप्राइज्ड एंड सरप्राइजिंगली एंड एक्साइटेडली ही स्पीक्स दैट ही कुड व्यू अ टी गार्डन। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement। प्रांजल जो कि उसका असम में जन्म हुआ था और असम में ही बड़ा हुआ था, टी गार्डन प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, चाय के बागान के में ही वो बड़ा हुआ। अपना जिंदगी अपना जब वो छोटा था, अपना पूरा समय चाय बगीचे में वो बिताया। उसके लिए, प्रांजल के लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि चाय बगीचे में ही उसको अपनी जिंदगी काटा है। दिल्ली पढ़ाई करने जाने से पहले तो वो बिल्कुल चौंका नहीं। और राजवीर का जो खुशी था, जो प्रसन्नता था, जो राजवीर की खुशी थी, उसको वो शेयर नहीं किया, क्योंकि उसके लिए कोई नया चीज नहीं था चाय का बगीचा प्रांजल के लिए। तो राजवीर की खुशी को देखकर वो कुछ नहीं बोला। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ today's portion of the lesson, today's part of the lesson. I will come with the next part of this lesson and explain to you. So excitement awaits for you. So you must be thinking what will happen next, so that what is going to happen in the next part I will discuss in the next class. Thank you.